Hello everybody, welcome to the very first lecture of ray optics. So in the introduction part, let us discuss what is optics and what are its classification. Okay, so optics it's branch of physics that deals with the study of nature, production and propagation of light. I repeat, it do discuss about nature, production and propagation of light. Optics itself can be divided into two. First one is ray or geometrical optics and second one is wave or physical optics. Let us have a small discussion on what is this ray optics and what is wave optics. Okay, so ray optics or geometrical optics. So it concerned with, it deals with the particle nature of light. That means whenever we are discussing any phenomenon associated to light, which can be explained based on the particle nature of light, okay, then that do comes under the category of ray optics. अगर हम particle nature, light का जो particle nature के based जो भी phenomena है उसको जब हम डिस्कस करोगे then that particular branch of physics which is going to deal with the nature, production and propagation of light is known as ray optics or geometrical optics. Okay, ये जो ray optics है it's based upon two things. Okay, so ये जो particular concept जो develop किया हुआ है उसके पीछे उसका जो base है, first one is रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि रे ऑप्टिक्स के अंदर या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर लाइट का जो ट्रैवलिंग जो होगा दैट विल बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओनली. ओके, डिविएशन होंगे, डिविएशन होने के बाद भी like point A to B it will be on a straight line, then B to C it will be on another straight line. Okay, so that is the first thing. It is based on the rectilinear propagation of light, and second thing is that it is based on law of reflection and law of refraction. So ray optics का जो base है that is two things. First thing is rectilinear propagation of light and second one is law of reflection and law of refraction. और जब हम वेव ऑप्टिक्स की तरफ जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, देखिए, once we discuss any particular phenomenon based on the wave nature of light, okay, then that particular study of what, nature, production and propagation of light, okay, comes under the category of what, wave optics. So पहला वाला जो केस था यानी कि रे ऑप्टिक्स, उसमें हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कंसीडर किए थे. अब इधर हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग वेव नेचर ऑफ लाइट. ओके, so wave or physical optics, it concerned with the wave nature of light and is based on the phenomenon like interference, diffraction and polarization. मेरा कहने का मतलब कि इंटरफेरेंस नाम का फिनोमेना, डिफ्रैक्शन नाम का फिनोमेना, पोलराइजेशन नाम का फिनोमेना, ये फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमें जो वेव ऑप्टिक्स का कंसेप्ट डेवलप कराना पड़ा. दैट मींस वेव ऑप्टिक्स का जो बेस है ये तीन फिनोमेनास है. ओके, और इसमें हम लाइट का जो प्रोपगेशन है, दैट वी विल एक्सप्लेन यूजिंग वेव नेचर ऑफ लाइट, एंड रे ऑप्टिक्स में द प्रोपगेशन ऑफ लाइट दैट इज एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. Okay, so that was a introduction lecture on optics. Now let us discuss about the behavior of light at the interface of two media. So this is our second topic, topic number 2. So the first one was introduction. Now here this is topic number 2, that is behavior of light at the interface of two media. Okay, इसमें हम क्या assume करेंगे, we will assume that the light is traveling from one medium to another medium. I repeat, light is traveling from one medium to another medium. So at the surface, of course we will be having a surface of separation. Fine. So जब light medium 1 से travel करके medium 2 के तरफ जब आएंगे, so of course as I told, हमारे पास एक surface of separation होगा. उस surface of separation में there will be
there might there might be three effects, है ना, three effects possible है उधर. First one is that a part of light जो है वो जिस मीडियम से ट्रैवल करके जा रहे थे उसी मीडियम में वापस भेज सकते हैं. That is, a part of incident light is turned back to the first medium. Of course, as I told you, it was traveling from first medium to the second medium. So अब इस केस में सरफेस में जो मीडियम 1 और मीडियम 2 के जो सरफेस ऑफ सेपरेशन में ओके स्ट्राइक करने के बाद a part of light is turned back to the first medium. ठीक है, then that phenomenon is known as reflection. Is known as what? Reflection of light. I told you, light हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 के तरफ जा रहा है. मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट करते हुए there is a surface. Okay, there's the surface of separation. Now ये जो surface of separation में जब strike करेंगे, three possibilities are there. Possibility number 1 is that a part of light is turned back to the first medium, that is known as reflection. Possibility number 2 is that a part of light is transmitted into the second medium, है ना, वो जो इंसिडेंट किया हुआ जो लाइट है उसका एक पार्ट सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट किया गया है, बट along a changed direction. जिस डायरेक्शन में आ रहे थे उस डायरेक्शन में नहीं है, उस डायरेक्शन से हटके. Okay, there will be a change in the direction. Then that particular phenomenon is known as the refraction of light. Okay, and the third one is that a part of light is absorbed by the second medium. Okay, so medium 1 से light आया, आप देख सकते हैं, this was the light which was coming, medium 1 से आया. So this is medium 2, ये जो this is medium 2, ये देखिए this is medium 2. Fine. Now देखिए this was medium 1 and medium 2. Some part of light was sent back to the medium. So इसको हम reflected ray बोलते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे. ठीक है, और जो रे है उसको जाना था ऐसे, बट ये मीडियम होने की वजह से आप देखिए इन सम अदर डायरेक्शन में इसको ट्रांसमिट किया हुआ है. दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड आई टोल्ड यू some part of light, of course, it is going to be absorbed by the second medium also. तो ये जो medium 2 जो है some part of light को absorb भी कर देंगे. So ये this was the surface of separation, medium 1 और medium 2. So surface of separation से light reflect भी हो गया, refract भी हो गया, और तीसरा जो possibility है that is what? Absorption of light. So these these are the three possible behavior of light once the light do travel from one medium to another medium. I believe it's clear for you. Okay, our next topic is law of reflection of light. So this is our topic number 3, law of reflection of light. Okay, इधर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ब्रीफ कर लेता हूँ. सो ये जो नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज ए मिरर एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, सो ये देखिए, ये आपका इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे आया, फाइन, स्ट्राइक किया, इसके बाद ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे. फाइन. सो दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो इधर मैंने एक टैंजेंट क्रिएट किया, देखिए ऐसे एक टैंजेंट क्रिएट किया ऐसे. नाउ उस टैंजेंट को ऑफ कोर्स ओनली वन नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया. ओके, परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट. दिस इज नोन एज अ नॉर्मल. नाउ इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहे थे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड इस नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल जो बना रहे हैं, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सो I is angle of incidence, okay, and small letter r is angle of reflection.
ओके, सो आई बिलीव डायग्राम बड़ा क्लियर हो गया होगा. वी हैड अ मिरर, एक इंसिडेंट रे, दैट रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, उस टैंजेंट को हमने उस टैंजेंट के एक परपेंडिकुलर क्रिएट किया पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओनली. ठीक है, नाउ दैट नॉर्मल को हमने नाम दे दिया नॉर्मल. फाइन, वो जो परपेंडिकुलर है उसको हमने नॉर्मल नाम दे दिया. नाउ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहे हैं हम उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दिया. ओके, नाउ ये देखिए आप, इधर मैंने एक प्लेन बनाया हुआ, देखो दिस प्लेन. अभी मैं इसको like I would like to create with this using this yellow color sketch. देखिए ये जो प्लेन है, okay, this is a plane which is perpendicular to the reflecting surface. I repeat, perpendicular to the reflecting surface and passing through the point of incidence also. Okay, now आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपको इस प्लेन में मिलेंगे. ओके, सो प्लेन भी मैंने कैसे बनाया समझ में आया होगा. अब आप देखिए, व्हाट इज दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेज. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. This is the first statement, and let us see what is the second statement. The second statement is incident ray, reflected ray and the normal. I repeat, incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence. अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने जब आपको प्लेन क्रिएट करते वक्त मैंने बोला था दिस पर्टिकुलर प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. Now incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in same plane. यानी कि incident ray, reflected ray or normal, okay, it will be lying in a same plane which is passing through the point of incidence. Okay, so this is law of reflection. And हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये law of reflection है, this is not only applicable for a plane mirror, it is applicable to all type of reflecting surfaces. So there is a very important point. The law of reflection is valid to all types of reflecting surfaces. Okay, so that was our topic number 3, which was laws of reflection of light. Okay, अब हम डिस्कस करेंगे spherical mirrors. So that is our topic number 4. Topic number 4, spherical mirrors. Okay, हम पहले देखते हैं कि what I mean by a spherical mirror. Fine. So spherical mirror is a reflecting surface which forms a part of a hollow sphere. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या चीज. ये देखिए, इधर आपके पास 3 फिगर है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3. ठीक है, फिगर नंबर 1 जो है दैट स्टैंड्स फॉर ए होलो स्फीयर. इस होलो स्फीयर से आपने देखो इधर इधर ऐसे कट कर रहा है, क्या ऐसे इसको कट किया, ऐसे आपने इसको कट किया. ठीक है, सो दिस इज द सीसर, आपने इसको ऐसे कट किया. फाइन, अब आप देखिए इतना जो पोर्शन है अलग हो गया, इतना पोर्शन अलग हो गया. ठीक है, और ये अलग हो गया और ये अलग हो गया. अब हम सिर्फ इस पोर्शन को उठा रहे हैं, इस पोर्शन को उठा रहे हैं. देखिए इसको उठाया, उठाने के बाद फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, इधर आपके पास देखो दिस इज द बल्ज्ड सरफेस है ना, एंड दिस इज द डिप्रेस्ड सरफेस. अब फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, देखिए ये बल्ज्ड सरफेस पे पॉलिशिंग दे दी, इधर मैंने इनर सरफेस पे जो है पॉलिशिंग दे दिया. ठीक है, फाइन. नाउ सो जो पॉलिशिंग दिया ना उसका दूसरा साइड दैट विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो आप देखिए इधर मैंने पॉलिशिंग दिया था, सो इनर सरफेस दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इधर मैंने इनर सरफेस में
पॉल्यूशन दिया था, सो इधर आउटर सरफेस है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो ये देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गए। Okay, so this type of mirror is known as concave mirror, and here this is known as a convex mirror. So spherical mirrors दो टाइप के होते हैं, concave mirror and convex mirror. Now let us see what could be the definition for a concave mirror and what would be the definition for a convex mirror. Okay, now सबसे पहले हम देखते हैं कि concave mirror, that is figure number 3. Okay, so concave mirror में हमारे पास, sorry, figure number 2, concave mirror. Okay, this is concave mirror. Now, so let us see the definition for a concave mirror. A spherical mirror in which the outer bulged surface is silvered, polished, and the reflection of the light takes place from the inner hollow surface. सी देखिए पहला वाला फिगर नंबर 2 में बल्ज्ड सरफेस को पॉलिश किया हुआ है और रिफ्लेक्शन कहां से होंगे, इनर सरफेस से होंगे। सो दैट इज ए कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, रिफ्लेक्शन बल्ज्ड सरफेस से होगा और पॉलिशिंग आपने इनर सरफेस पे दिया। ओके, सो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज द स्फेरिकल मिरर इन विच द इनर होलो सरफेस इज सिल्वर्ड, पॉलिशिंग आपने इनर सरफेस पे दिया एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर बल्ज्ड सरफेस। सो रिफ्लेक्शन इधर कहां से होंगे, बल्ज्ड सरफेस से होगा। सो दैट वाज फिगर नंबर 3 है ना। फिगर नंबर 3 में वही हो रहा था, हमने पॉलिशिंग कहां दे रखे थे, देखो पॉलिशिंग इनर सरफेस में दे रखा था। ओके, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर बल्ज्ड सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला था। सो फिगर नंबर 3 स्टैंड्स फॉर convex mirror, figure number 2 stands for concave mirror, and of course figure number 1 was just to show how this concave mirror and convex mirror, it is being made from a hollow sphere. Okay, so that was our topic number 4 and there was spherical mirrors. अब हम डिस्कस करेंगे some definitions related to spherical mirrors, and this is very important क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये टर्मिनोलॉजी से बोला जाएगा। सो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टर्मिनोलॉजी किस चीज का मेजरमेंट या किस चीज के बारे में आपको आइडिया दे रहा है। ओके, अब आप देखिए इधर मैंने एक स्फीयर से एक कॉन्केव मिरर बना रखा है। ओके, एक स्फीयर से एक कॉन्केव मिरर बना रखा है क्योंकि आप देख सकते हैं सिल्वरिंग मैंने आउटर बल्ज्ड सरफेस को मैंने सिल्वरिंग दे रखा है एंड रिफ्लेक्शन जो है इनर सरफेस से होगा, दैट इज व्हाई इट इज ए कॉन्केव मिरर। ओके, सो आप देख सकते हैं, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस पार्ट्स फॉर यू। सबसे पहले सिल्वर सरफेस, ये देखिए दिस इज द पोल। नाउ ये जो है, सो दिस वाज द स्फीयर, इस इधर का इस स्फीयर का रेडियस दिखा रखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर, और ये जो लाइन ए बी को मैंने अपर्चर बोल रखा है, और ये देखो ये वाला जो लाइन है इसको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बोल रखा है, और ये P और C, दिस पॉइंट इज C, और P और C के बीच में एक लाइन है बिल्कुल मिड पॉइंट में, उसको मैंने फोकस बोला हुआ है, और C वाला जो पॉइंट है इसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला हुआ है। ओके, नाउ लेट अस सी ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है एसोसिएटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट पोल। ऑलराइट, अबाउट पोल, पोल मींस इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सो दिस इज द स्फेरिकल मिरर, ये आपका स्फेरिकल मिरर था, ये आपका स्फेरिकल मिरर है। सो इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल। ओके, सो अगर आप इसको फ्रंट व्यू देखोगे ऐसे आपको एक सर्कुलर पोर्शन मिलेंगे, फाइन। सो इसका जो मिड पॉइंट है इसको पोल बोलते हैं। साइड से हम ऐसे दिखा पाएंगे और फ्रंट व्यू में ये पोल हो जाएगा आपका। सो पोल स्टैंड्स फॉर द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसको हम नॉर्मली कैपिटल P लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सेकेंड वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स जिस पर्टिकुलर स्फीयर से आपने अपनी स्फेरिकल मिरर बनाया है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। And once it comes in the form of definition, we can define it like this: it is
द सेंटर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। जिस स्फीयर का एक पार्ट काट के आपने अपने स्फेरिकल मिरर बनाया है, उस स्फीयर का जो सेंटर, हम उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स जिस स्फीयर का एक पार्ट को काट के आपने अपना स्फेरिकल मिरर बनाया है, उस स्फीयर का रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, इस फिगर में इसको AC एज वेल एज BC, देखिए AC एंड BC इस डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। फाइंड the straight line passing through the pole and the center of curvature। देखिए ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच किए हुए जो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज लीनियर अपर्चर। इट इज डिफाइंड एज the diameter AB of the circular boundary of the spherical mirror। अब आप देखिए, ये आपने इसका स्फेरिकल मिरर ऐसे काट दिया, सो आपको पता है इधर इट विल क्रिएट ए सर्कुलर बाउंड्री, है ना, एक सर्कुलर बाउंड्री ऐसे क्रिएट हो जाएगी इधर। अब ऑफ कोर्स दिस इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कुलर बाउंड्री। फाइन, समझ में आया होगा ना आपको? ये देखिए ऐसे एक पार्ट बनेंगे, सो ये हो गया आपका सर्कुलर बाउंड्री, सर्कुलर बाउंड्री, और ये इसका डायमीटर हो गया। सो इधर हमारा जो फिगर है उसमें इसको AB से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फाइन, सो आपका जो सर्कुलर बाउंड्री है उसका डायमीटर को हम बोलते हैं लीनियर अपर्चर। ओके, नेक्स्ट वन इज एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर मींस, ये देखिए आपका इस फिगर में देयर इज एन एंगल ACB, है ना, एक ACB, तो कोई ऐसे पार्ट बनेगा। सो ये जो एंगल है ACB एंगल, सो ABC, ये जो एंगल है एंगल ACB, ऑलराइट, इसको हम बोलते हैं व्हाट? एंगुलर अपर्चर। फाइन, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल फोकस। ओके, इस पे मुझे दो चीजें आपको एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्ट वन, आप देखिए ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, फिगर नंबर 1, एंड फिगर नंबर 2 एक कॉन्वेक्स मिरर। फिगर नंबर 1 पे जो रे इंफिनिटी से आ रहे थे, देखिए दिस वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, हियर वाज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। ये सारे रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर में आप देखिए ये जो रे इंफिनिटी से आ रहे थे, रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है इट्स कमिंग आउट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ओके, एट प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। देखिए ये रे बाहर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि इट्स कमिंग फ्रॉम हियर। सो देखो ये रे इट सीम्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम हियर, दिस वन इट सीम्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम हियर, दिस रे इट सीम्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम हियर, है ना। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन it appears to be diverging from a point। all right, ये दो केसेस में ये जो पॉइंट है एट प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, इसका डेफिनेशन कैसे हम करेंगे? देखिए, a narrow beam of light parallel to the principal axis either actually converge to or appears to diverge from a point capital F on the principal axis after reflection from the spherical mirror, okay, is known as principal focus। so concave mirror के लिए principal focus अलग है, convex mirror के लिए principal focus का definition अलग है। convex mirror में it seems to be diverging from, and concave mirror में it actually converges to a common point on principal axis। okay, अब हम discuss करेंगे what is this focal length, pole and principal focus। I repeat,
पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. Alright, next one is focal plane. Focal plane is a vertical plane passing through the principal focus and perpendicular to the principal axis. अब आप देखिए इधर आपके principal focus दिखाया हुआ है for a concave mirror, and I had created is a plane A B C D. ये जो plane है it is passing through principal focus, at the same time it is perpendicular to the principal axis also. Okay, so such a plane is known as what? Focal plane. So this is focal plane ABCD. Okay, so that was some important terminologies or definition of some important terms associated to a spherical mirrors. And next one is again a very important topic. I believe it's topic number 6. It was topic number 6, and topic is Cartesian sign convention for a spherical mirror. एक spherical mirror से associated आप measurement को कैसे कैसे signs दे सकते हैं, plus of course plus and minus it's going to be, और किस condition में वो plus होगा और किस condition में वो minus होगा. और ये जो explanation part में जो इधर मैं जो बोल रहा हूँ ये हमारा normal Cartesian coordinate system के similar ही जाएंगे, with origin O, towards right positive, upward positive, towards left negative, downward negative. Okay, so that is why इसका नाम Cartesian sign convention है. Okay, अब origin क्या होगा और इसका basic situation, basic condition क्या होना चाहिए, let us have a detailed discussion. Okay, इस sign convention में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, the incident light, I repeat, the incident light must be traveling from left to right. यानी कि आपका जो इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा लेफ्ट से राइट के तरफ ही होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मस्ट बी ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली. सो दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ लाइट. ऑलराइट, एंड व्हाट यू विल डू इज आपका जो मिरर का जो पोल है, मिरर का जो पोल है, you will treat that as the origin O. You will treat that as the origin. So pole of the mirror, it is going to act as the origin here. Okay, now from the pole, I repeat, from the pole, all reading towards right, it must be positive. All reading in the upward direction must be positive. All reading towards left, that must be negative. All reading in the downward direction, that also must be negative. ओके, लाइट का टर्म में अगर बोला जाए, ओके, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ओनली, दैट मींस आप ओरिजिन से, है ना, इधर पोल बोले तो ओरिजिन, फाइन. सो ऑल द डिस्टेंस दैट इज गोइंग टू मेजर फ्रॉम द पोल ओनली, है ना. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया, पोल हो गया. सो सारे डिस्टेंस आप पोल से मेजर करेंगे. ओके, पोल से सारे रीडिंग टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव होगा, यानी कि फ्रॉम द पोल all readings in the same direction of light. Light right की तरफ आ रहा था, so all readings from the pole towards light, यानी कि in the same direction of light, it's going to be positive. From the pole, all reading towards left, यानी कि negative in the opposite direction of light, that is going to be negative. Okay, next one, all readings, yeah, all measurements from the pole, okay, from the pole in the upward direction and perpendicular to the principal axis. I repeat, all distance measured upward from the pole and perpendicular to the principal axis has to be positive, and all distance measured downward, I repeat, all distance measured downward from the pole and perpendicular to the principal axis, it has to be negative. Okay, I repeat once again, all measurements from the pole, that is here आपका ओरिजिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन, बट वैसे मिरर का टर्म्स में बोला जाए तो पोल. सो ऑल रीडिंग्स फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, all readings from pole towards left is negative, all reading from pole upward direction perpendicular to the principal axis positive, all readings from the pole perpendicular to the principal axis downward direction, it has to be negative. And the most important condition over here is that the light must be traveling from
left towards right. Okay, now the most important conclusion over here जो आगे जाकर के आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, that is focal length as well as radius of curvature. I repeat, focal length and radius of curvature for a convex mirror. For a convex mirror will be always positive. Focal length and radius of curvature of a concave mirror, that will be always negative. That was a very important conclusion which is going to be really helpful for you people ahead.